Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to continue the same chapter of corporate governance, that is organizational structure of board of directors. So let us begin with the topic. So first comes contribution to bona fide charitable fund. As per Companies Act 2013, the Board of Directors may contribute to the charitable and other funds not directly relating to the business of the company or the welfare of its employees. The board has to obtain the prior permission of the company in the general meeting in case the amount of which in any financial year exceeds 5% of its average net profits for the 3 immediately preceding financial years. It means as per section 181 of the Companies Act, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन पे ये बाउंडेशन होगी कि वो चैरिटेबल फंड के लिए कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे and other funds which are not directly relating to the business of the company or the welfare of the employees. and इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रायर परमिशन लेनी होगी कंपनी की इन द एनुअल जनरल मीटिंग इन केस any amount the aggregate of which in any financial year exceeds 5% of its average net profits for the 3 immediately preceding financial years. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्हें कंट्रीब्यूशन देना होगा टू द चैरिटेबल फंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ इन केस अगर एग्रीगेट अमाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. सो इसके लिए एक उन्हें रेजोल्यूशन पास करना होगा इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रायर परमिशन लेना होगा कंपनी का. नेक्स्ट कम्स प्रोहिबिशन ऑन द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस. So prior to the Companies Amendment Act 1985, companies were prohibited from making contributions for the political purposes, but this ban was lifted consequent to passing of the Amendment Act of 1985, and the companies other than the government companies and those which were in existence for less than 3 years would contribute money to any political party or any person for political purposes. So जब Companies Act 1985 में अमेंडमेंट नहीं हुई थी, इट मीन्स अमेंडमेंट से पहले जो कंपनीज थी उन पे ये प्रोहिबिशन था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशंस नहीं करेंगी, उन पे एक बैन था. बट फिर अमेंडमेंट्स के बाद जो कंपनीज़ हैं एंड जो कंपनीज़ होंगी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनीज़ उन पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगी. वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मनी को टू एनी पॉलिटिकल पर्पस और टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट, if any company makes any contribution in contravention to the provisions of section 182, it shall be punishable with fine which shall extend to 5 times the amount so contributed, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment which shall extend to 6 months and with fine which shall extend to 5 times the amount so contributed. But now ये जो कंट्रीब्यूशन होगा पॉलिटिकल पर्पस के लिए ये सेंक्शन किया जाएगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन पे आउट करना है, कोई भी मनी पे करना है, तो उसके लिए उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी. इन केस अगर कंपनी ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया बट प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, सेक्शन 182 में जितने भी प्रोविजंस मेंशन होंगे उन्हें फॉलो नहीं किया होगा, तो जो कंपनी होगी वो पनिशेबल होगी विद अ फाइन विच शैल एक्सटेंड्स टू 5 टाइम्स द अमाउंट जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा. एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट
shall be punishable with the imprisonment which shall extends to 6 months and with fine which shall extends to 5 times the amount so contributed. Next, contributions to the National Defence Fund, etc. Section 183 of the Companies Act 2013 provides that the Board of Directors of the company may contribute any amount to the National Defence Fund as approved by the central government for the purpose of national defence. The contribution made to the National Defence Fund must be declared in profits and loss account for every financial year to which the amount relates. As per Section 183 of the Companies Act, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा नेशनल डिफेंस फंड के लिए एंड उन सभी फंड्स के लिए जो कि अप्रूव किए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस. ये जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट होगी ये डिक्लेयर की जाएगी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट कम्स द ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स. फर्स्ट कम्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़. अब कुछ ड्यूटीज़ होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. फर्स्ट इज़ इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट ड्यूटी क्या होगी डायरेक्टर्स की कि इंश्योर करना कि जितने भी मैटर्स या इन्फॉर्मेशन मेंशन है प्रोस्पेक्टस में इज़ इट करेक्ट और इनकरेक्ट. सो जो भी मिस स्टेटमेंट्स होंगी या जो भी अनट्रुथ स्टेटमेंट्स होंगी प्रोस्पेक्टस में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ड्यूटी क्या होगी कि प्रोस्पेक्टस को अच्छे से इंस्पेक्ट करना. नेक्स्ट, साइनिंग द प्रोस्पेक्टस. साइन करना प्रोस्पेक्टस को ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग द एनुअल स्टेटमेंट्स. एनुअल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना कंपनी की before the registrar of companies. Next, holding the statutory meeting and forwarding the statutory report. It means board of directors की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना कंपनी में which is called the statutory meeting with a period of not less than 1 month and not more than 6 months. एंड उनकी फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टैचूटरी रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करना एंड फर्दर किसे कन्वे करना मैसेज टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़. नेक्स्ट, कन्वेनिंग ऑफ जनरल मीटिंग. सभी कंपनीज़ में एनुअल जनरल मीटिंग होगी. सो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये ड्यूटी होगी कि उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल करना है. नेक्स्ट, कन्वेनिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए. नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की ये ड्यूटी होगी कि वो डिविडेंड को डिक्लेयर करें एंड पे करें टू द कंपनीज शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस. It is the duty of the directors to pay to the company on each share taken or contracted to be taken by them a proportion equal to the proportion payable on application and allotment of shares by the public, and making a declaration about the company having received the certificate of commencement of business. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये भी ड्यूटी होगी कि आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो सभी पार्टीज़ को इन्फॉर्म करे रिगार्डिंग द रिसीविंग ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग द एनुअल अकाउंट्स. ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वो एनुअल अकाउंट्स को प्रेजेंट करे. Annual accounts includes a balance sheet as at the end of the period and a profit and loss account for that period. Next, sending copies to registrar. Annual accounts की कॉपी को सेंड करना टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये भी ड्यूटी होगी डायरेक्टर्स की. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए ऑडिटर्स के सामने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना. डिक्लेयरिंग सॉल्वेंसी. एट द टाइम ऑफ सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल. नेक्स्ट, डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट.
ये भी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज़ करना है इन दी मीटिंग of the company. Next, duty to prepare directors responsibility statement and report. डायरेक्टर्स की ये भी ड्यूटी होगी कि उन्हें डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है एंड उसे सेंड करना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलोंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स. नेक्स्ट कम्स द जनरल ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. फर्स्ट, डायरेक्टर्स को एक्ट करना होगा कंपनी के बिहाफ पे इन गुड फेथ फॉर द कंपनीज प्रॉफिट्स, बिकॉज कंपनी के साथ उनका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा. इट मीन्स ट्रस्ट एंड फेथ के बेसिस पे रिलेशन होगा. नेक्स्ट, डायरेक्टर्स को ओवर क्लेवर नहीं बनना, उन्हें फंक्शन करना है विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस. नेक्स्ट, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना, उन्हें सभी मीटिंग्स को अटेंड करना होगा. नेक्स्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली उन्हें डिस्चार्ज करना होगा. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई है उसे उन्हें डेलीगेट नहीं करना. नेक्स्ट, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड सोसाइटी? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्हें जितने भी ऑपरेशंस करने हैं, जितने भी एक्शंस लेने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में लेने हैं और उन्हें वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे कि सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो. दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, gender inequality, enhancing the social skills, ensuring the environmental sustainability, etc. Next comes liabilities of directors. अब कुछ situations ऐसी होंगी जब directors liable होंगे personally. So कौन कौन सी situations होंगी? First comes liability towards company and next comes liability towards outsiders. Next comes criminal liability. फर्स्ट कम्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी. अब कंपनी के टुवर्ड्स क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी एक डायरेक्टर की? फर्स्ट कम्स लाइबिलिटी फॉर द अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स. इन केस एनी डायरेक्टर एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी ही शैल बी लाइबल टू द कंपनी. इन केस डायरेक्टर ने ऐसा कोई काम किया या ऐसा कोई फंक्शन किया जो कि उसे अथॉरिटी नहीं थी जिसकी उसे, तो उस केस में कौन लायबल होगा? डायरेक्टर लायबल होगा. तो जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, उन्हें अपने अथॉरिटी के स्कोप के विद इन एक्ट करना है. इन केस अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो उनकी अथॉरिटी के अंडर नहीं था तो उसके लिए वो खुद लायबल होंगे. सो नेक्स्ट कम्स लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस. इन केस अगर डायरेक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी मिस हैपनिंग हो गई और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर करना पड़ा तो उस चीज़ के लिए भी कौन लायबल होगा? डायरेक्टर लायबल होगा. नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्टर्स और कंपनी में रिलेशन होगा वो फिड्यूशियरी रिलेशन होगा. इट मीन्स ट्रस्ट एंड फेथ के बेसिस पे रिलेशन होगा दोनों के बीच में. अगर इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया या गुड फेथ में काम नहीं किया तो उस चीज़ के लिए भी कौन लायबल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल होंगे. इन केस अगर डायरेक्टर ने कंपनी के फंड्स को मिसयूज़ किया या कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया कंपनी के बिहाफ पे, सो उस केस में लायबल कौन होगा? डायरेक्टर लायबल होगा. नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर फ्रॉड. इन केस अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड कमिट किया तो उसके लिए भी कौन लायबल होगा? डायरेक्टर लायबल होगा. सो इन केस ऑफ फ्रॉड जो डायरेक्टर होगा वो लायबल होगा. नेक्स्ट, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स. अब आउटसाइडर्स के लिए भी लायबल होगा एक डायरेक्टर. फर्स्ट कम्स लायबिलिटी फॉर द अल्ट्रा वायर्स एक्ट. इन केस अगर डायरेक्टर ने कोई भी ऐसा एक्ट किया होगा विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी एंड बट उसने अगर आउटसाइडर्स को ये प्रिटेंड किया होगा कि ये उसने एक्ट इसलिए किया है क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी के विद इन है. एंड इन केस अगर आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन मिली
कि जो भी डायरेक्टर ने एक्ट किया था वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी था, तो उस चीज़ के लिए भी कौन लायबल होगा? डायरेक्टर लायबल होगा उस आउटसाइडर को। नेक्स्ट, लायबिलिटी एज एजेंट्स। एज वी नो कंपनीज डायरेक्टर्स आर इट्स एजेंट्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो एक तरह से एज अ एजेंट ही तो काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो एक जो डायरेक्टर होगा उसकी ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे एज़ पर द प्रिंसिपल गाइडेंस वर्क करना है। सो उसे अपने राइट्स के बियॉन्ड नहीं जाना, उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उसके बियॉन्ड नहीं जाना उसे। अगर इन केस एज एन एजेंट किसी भी डायरेक्टर ने कोई भी मिस स्टेटमेंट कर दी इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस या कोई भी अनट्रुथ फैक्ट डिस्क्लोज़ किया इन द प्रोस्पेक्टस, तो उसके लिए डायरेक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी इन रिलेशन टू अलॉटमेंट। If no shares are allotted on the expiry of 120 days after the first issue of prospectus, all money received from the applicants shall be forthwith repaid to them, and if such money is not repaid, then the directors of the company shall be liable to repay the money with interest. In case अगर शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं हुई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जो भी मनी एप्लीकेंट्स की होगी उन्हें रीपेड कर दी जाएगी। इन केस अगर वो मनी रीपे नहीं की डायरेक्टर्स ने, तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे टू रीपे द मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। Every company offering shares or debentures to the public for subscription by issuing a prospectus shall make an application to stock exchanges. In case the permission is not granted by the stock exchange, any allotment made to the application shall be void and the director must return the application money forthwith. In case अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी अप्रूवल नहीं मिला होगा ऑर्गेनाइजेशन को बिफोर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी डायरेक्टर ने फॉर द शेयर्स, तो उसे वो रीपे करनी होगी। इस परमिशन के बिना कोई भी अलॉटमेंट नहीं की जाएगी किसी भी एप्लीकेंट को, अगर की जाएगी तो वो वॉइड मानी जाएगी। इसलिए डायरेक्टर की ड्यूटी क्या होगी कि उसे उनकी पेमेंट को रीपे करना होगा, एंड इन केस अगर कोई भी डायरेक्टर रीपे नहीं करेगा तो वो पर्सनली लायबल होगा टू रीपे द एप्लीकेशन अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। In case any allotment of shares is made without receiving the minimum subscription amount, such allotment shall be void and the director shall be liable for the same. मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना अगर कोई भी शेयर्स अलॉट किए होंगे डायरेक्टर ने, तो डायरेक्टर इस केस में पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट, क्रिमिनल लायबिलिटी। अब कुछ सिचुएशंस होंगी जब एक डायरेक्टर क्रिमिनली लायबल होगा इन केस अगर उसने कोई भी मिस स्टेटमेंट या फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दी होगी कंपनी की प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी होगी उसने जो कि फॉल्स है, मिसलीडिंग है या मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया होगा, तो उस केस में वो क्रिमिनली लायबल होगा। नेक्स्ट, उसे पनिशेबल किया जाएगा विद फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट और बोथ। नेक्स्ट, अगर उसने एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी फ्रॉम द डिफरेंट एप्लीकेंट्स एंड इन केस उसने वो मनी अपने पास रखी, कंपनी को डिपॉजिट नहीं की, तो ही शैल बी पनिशेबल फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 1 year और विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 rupees but which may extends to 3 lakh rupees or with both. Next, where the dividend of the company has been declared but not has been paid within 30 days of the declaration, the defaulting directors of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extends to 2 years and shall also be liable to a fine of
1000 rupees for every day during which such default continues, and the company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which default continues. इन केस अगर कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है बट स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड टाइमली पे नहीं किया टू द शेयर होल्डर्स, तो जो डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर्स होंगे वो क्रिमिनली लायबल होंगे. नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ डिफ़ॉल्ट इन प्रेजेंटिंग द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द जनरल मीटिंग, इन केस अगर कंपनी के एनुअल अकाउंट्स को उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो डायरेक्टर्स पनिशेबल होंगे विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन ₹50,000 बट विच में एक्सटेंड्स टू ₹3 लाख और विद बोथ. नेक्स्ट, अगर डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स को प्रेजेंट नहीं किया अलॉन्ग विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग, तो वो लायबल होंगे. इनप्रिजनमेंट होगी उन्हें 3 ईयर्स की और विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन ₹50,000 बट विच में एक्सटेंड्स टू ₹5 लाख और बोथ. नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन ने एक्ट किया होगा एज अ डायरेक्टर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, तो उस चीज़ के लिए भी उसे पनिशमेंट मिलेगी which shall not be less than 5,000 rupees of fine and which may extends to ₹25,000 rupees for every day during which the default continues. Next, अगर किसी भी डायरेक्टर ने कोई भी ऐसा एक्ट किया होगा या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी जिसको उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया होगा टू द कंपनी, तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल होंगे. तो जो डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर होगा वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 1 ईयर और विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख रुपीज़ और विद बोथ. तो ये कुछ सिचुएशंस थी जब डायरेक्टर्स लायबल होगा. नेक्स्ट कम्स बोर्ड्स मीटिंग. A company being an artificial person perform all its actions through its directors. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसलिए जितने भी कंपनी के अफेयर्स होंगे, एक्शंस होंगे, वो कौन परफॉर्म करेगा? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो डायरेक्टर इज़ अ वन हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी, कंपनी की मैनेजमेंट होगी, उसे कंट्रोल करना, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, तो वो सारा काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. तो जो कॉरपोरेट डिसीजंस होंगे वो भी कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे. एंड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, मैटर्स को डिस्कस आउट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज भी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो द मीटिंग ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज meetings of the board of directors and meetings of directors committees. First comes the provisions regarding the board's meeting. The main provisions related to the meeting of the company's board of directors are: first is power to convene the meeting. अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास ये पावर होगी कि वो किसी भी टाइम पे डायरेक्टर्स की मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर से और चेयरमैन से to call such meeting. Next, period of meeting. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो अपनी मीटिंग को कॉल करेंगे, होल्ड करेंगे अपनी फर्स्ट मीटिंग को विद इन 30 days ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन एंड होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 meetings of its board of directors every year. एंड पार्टिसिपेशन कैसे होगी इन डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में? द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी ईदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. नेक्स्ट, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग. एक रिटन नोटिस देना होगा बोर्ड की मीटिंग के लिए कंपनी को of not less than 7 days prior to the date of board's meeting, जिसमें क्लियरली
मेंशन होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो किस वे से होगी, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ होगा या कौन सा ऑडियो विजुअल मीन्स यूज़ होगा। मीन्स एक रिटन नोटिस दिया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रायर टू दी 7 days बिफोर द कंडक्शन ऑफ द बोर्ड्स मीटिंग। इन केस अगर कंपनी के ऑफिसर ने नोटिस नहीं दिया कंपनी को बिफोर 7 days तो वो लायबल होगा, उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी ऑफ ₹25,000। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 173, वन पर्सन कंपनी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट कंपनी के केस में जो एक बिजनेसमैन होगा, जो एक कॉरपोरेशन होगी, वो बाउंड होगी कि उसे कंपनीज एक्ट के सभी प्रोविजंस को फॉलो करना होगा एंड एटलीस्ट 1 मीटिंग तो कंडक्ट करनी ही होगी उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। एंड जो गैप होगा बिटवीन द 2 मीटिंग्स वो कितना होगा, नॉट लेस देन 90 days। नेक्स्ट कम्स क्योरम। क्योरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स who must be present for the meeting to be lawfully held। Quorum means एक minimum number of directors जो कि मैंडेटरी होंगे, जिनकी प्रेजेंस कंपल्सरी होगी इन द मीटिंग। सो द रिक्वायर्ड क्योरम फॉर सच मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ डिफाइंड इन द कंपनीज आर्टिकल्स। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्योरम मेंशन होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंशन होंगे हु मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर कोई भी एज सच प्रोविज़न मेंशन नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो जो क्योरम होगा मीटिंग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो क्या होगा, इट शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। Every meeting of the board of directors of a company must be presided over by a chairman. The company may name the chairman or the directors of the company may elect a chairman to preside over the meeting. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक चेयरमैन भी होगा जिसकी इलेक्शन कौन करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे कंपनी के। नेक्स्ट, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन मीटिंग्स। All such business which is within the company's authority is transacted in the meeting of board of directors, but the board of directors cannot transact any business which according to the provisions of the Companies Act or the memorandum or articles must be transacted in the general meeting of the company's shareholders. It means जो मीटिंग में जो बिज़नेस होगा, इट मीन्स जो मीटिंग में बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी, जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम बात करेंगे मीटिंग में। तो बिज़नेस टू बी ट्रांजैक्टेड क्या होगा, जो कि मेंशन होगा कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। एंड वो मैनर एंड मोड भी डिस्क्राइब्ड होगा इन द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कि किस मैनर में मीटिंग कंडक्ट होगी, कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। एंड एक रेजोल्यूशन भी पास होगा इन द मीटिंग on the matters to be decided in the board's meeting. Next, minutes of meeting. Minutes are the gist of the proceedings of a meeting. They constitute a summary of the proceedings of the meeting. So every company shall cause minutes for all the proceedings of board meetings of every committee of the board in the books received for the purpose within 30 days of the conclusion of the meeting. Minutes means कुछ पर्पस होगा मीटिंग कंडक्ट करने का, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। एक बुक मेंटेन होगी, दैट बुक इज़ कॉल्ड मिनट्स बुक। इस मिनट बुक के पेजेस को कंसेक्यूटिवली नंबर दिया जाएगा एंड हर एक पेज पे साइन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। एंड
फिर इन मिनट्स को, फिर इन बुक्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास प्रेजेंट किया जाएगा। एंड जो ये मिनट्स होंगे, जो ये बुक्स होंगी, इनको मेंटेन किया जाएगा एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इन केस अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी ऑफ ₹25,000 एंड सभी ऑफिसर्स जो डिफ़ॉल्टिंग होंगे वो लायबल होंगे टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 एंड उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है विच में एक्सटेंड्स टू 2 years and with fine which shall not be less than ₹25,000 which may extends to 1 lakh rupees. Next, meeting of directors committees. If it is given in the articles of association of the companies कि डायरेक्टर्स की मीटिंग्स भी कंडक्ट हों, तो इट इज़ मैंडेटरी कि डायरेक्टर्स की कमिटीज़ बने। एंड सच कमिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। इन कमिटीज़ का मेन फंक्शन क्या होगा कि सभी इश्यूज़ को सॉल्व करना, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे बिटवीन द डायरेक्टर्स उन्हें सॉल्व करना एंड फंक्शन करना एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। So these committees are of 2 types, permanent committees and temporary committees. Permanent committee is the company's working committee. The main function of this committee is the day-to-day administration of the company. जो permanent committee होगी वो responsible होगी for the day-to-day working of the company. ये कमिटी में जितने भी मेंबर्स होंगे ये फ्रीक्वेंटली मीट करेंगे एंड सभी डिसीजंस लेंगे रिगार्डिंग द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। इन कमिटी के जो मेंबर्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स चेयरमैन इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अदर मेंबर्स कौन होंगे इस कमेटी में, हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल डायरेक्टर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, टेम्परेरी कमिटी. Temporary committee are constituted to take decisions on matters that are important for the time being. The board of directors considers the recommendation of the committees and makes the final decision. Temporary committees वो committees होंगी जिनकी सिर्फ एक राय ली जाएगी, उनका एक कंसेंट लिया जाएगा, लेकिन फाइनल डिसीज़न किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। सिर्फ उनकी रिकमेंडेशंस को सुना जाएगा, उनके सजेशंस को लिया जाएगा एंड फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो उन रिकमेंडेशंस को कंसीडर करेंगे एंड फाइनल डिसीज़न लेंगे। नेक्स्ट कम्स द क्रेडिटर्स मीटिंग्स. When a company issues debentures on its incorporation or issues any debentures and later wants to make an agreement with the holders of debentures is calls a creditors meeting. So creditors meeting जो होगी वो organize कौन करेगा, क्रेडिटर्स करेंगे एज़ पर द सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब क्रेडिटर्स की मीटिंग कंडक्ट क्यों की जाएगी? अगर क्रेडिटर्स के बीच में कोई भी सूट होगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसे सेटल डाउन करने के लिए, क्रेडिटर्स का कंसेंट लेने के लिए रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर का कंसेंट लेने के लिए टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो ये 3 केसेस हो सकते हैं जब क्रेडिटर्स की मीटिंग को कॉल किया जाएगा. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग. When a company issues its debentures, it also plans the meetings of the holders of the debentures, and the meetings of the debenture holders are called when the terms of the repayment of debentures need to be altered or when the rights of the holders of the debentures need to be altered. तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होंगे? जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स को एक्वायर किया होगा, होल्ड किया होगा, इशू किया होगा. सो 2 केसेस हो सकते हैं जब एक डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करेगी कंपनी, जब रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के टर्म्स को ऑल्टर करना होगा एंड या फिर उनके राइट्स को ऑल्टर करना होगा. नेक्स्ट कम्स सेबी नॉर्म्स रिगार्डिंग बोर्ड स्ट्रक्चर. अब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के भी कुछ नॉर्म्स बनाए गए रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रक्चर. फर्स्ट कम्स सेपरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO एंड चेयरपर्सन.
एज पर दी सेबी नॉर्म्स जो CEO इट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ये सेपरेट पर्सन्स होने चाहिए in order to avoid the concentration of power in the hands of one individual. It is better कि जो powers and responsibilities हैं वो divide की जाएं between the chairperson and CEO और MD. Next, minimum number of directors on a board. It is cleared कि जो board of directors होंगे वो कितने होने चाहिए, not less than 6 directors of listed entities, at least one woman independent director होनी चाहिए. ज़्यादा पार्ट्स किसको देनी है, शेयर होल्डर्स को देनी है, सो दैट कि वो कंपनी के डिसीजंस में इफ़ेक्टिवली पार्ट लें. सो साइज़ ऑफ क्योरम क्या होना चाहिए मीटिंग का, it should be increased for every board meeting of top 1000 listed firms. It should be 1/3 of its total strength or 3 directors whichever is higher, including at least 1 independent director. Then इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होंगे, जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा कंपनी के साथ, ना ही वो डायरेक्टर होंगे, ना ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कंपनी के, ना ही वो होल टाइम डायरेक्टर होंगे, ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर होंगे. अब कौन कौन सी क्लास होगी कंपनीज़ की जो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पाएगी. फर्स्ट कम्स पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी ₹10 करोड़ और मोर. नेक्स्ट पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर. नेक्स्ट पब्लिक कंपनीज हैविंग टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर. नेक्स्ट कम्स द क्वालिफिकेशंस फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप. क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास, उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कंपनी का प्रमोटर ना हो, जो कंपनी का डायरेक्टर ना हो, जिसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट और पेक्यूनियरी रिलेशनशिप ना हो कंपनी के साथ, ना ही उसके रिलेटिव का किसी का रिलेशन हो कंपनी के साथ, ना ही उसने किसी भी डिपार्टमेंट में की मैनेजरियल पर्सोनल की पोजीशन होल्ड की हो, ना ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय हो, ना ही पार्टनर हो, ना ही उसके पास कोई भी वोटिंग राइट हो, और ना ही वो कंपनी का क्या हो, CEO हो, और ना ही वो डायरेक्टर हो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट कम्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ऑफिस को होल्ड कर पाएगा फॉर अ टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एंड he or she shall be eligible for the reappointment on passing of a special resolution by the company. बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ऑफिस को होल्ड करेगा फॉर लेस देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एंड बाद में वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएगा आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years. सो any tenure of an independent director on the date of commencement of this act shall not be counted as a term under the above provisions. अगर कोई भी टाइम पीरियड जो कि स्पेंड किया होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा एज अ टर्म अंडर द अबव प्रोविजंस. नेक्स्ट कम्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कंपनी. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सेम रूल्स रेगुलेशंस वही रहेंगे जो बाकी डायरेक्टर्स के लिए होंगे. एज़ पर शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एंड कंपनी को, लाइक सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लाइक पर्टिकुलरली द माइनॉरिटी होल्डर्स. जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उन्हें रिजॉल्व करना, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एट्सेट्रा. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर.
He may receive remuneration by the way of sitting fee, reimbursement of expenses incurred for the participation in the board's meeting, and profit related commission as may be approved by the members as provided under section 197 subsection of 5 of the act. तो रेम्यूनरेशन इनकी कौन डिसाइड करेगा? प्रोविजंस में मेंशन होगा कि किस बेसिस पे इन्हें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी ये कंपनी, एंड कितना परसेंटेज होगा कमीशन का, वो अप्रूव कौन करेगा? मेंबर्स. नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या होगी? An independent director and a non-executive director except the promoter or key managerial personnel shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which has occurred with his knowledge, attributable through board processes and with his consent, or where he had not acted diligently. लाइबिलिटी क्या होगी? अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो उसने इंटेंशनली किया होगा, इट मीन्स अगर उसने कोई भी ओमिशन किया या फिर फ्रॉड अटेम्प्ट किया बट इंटेंशनली किया, उसका पर्पस था कि फ्रॉड करना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि लॉस हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो खुद पर्सनली लायबल होगा, जो भी उसने एक्ट किए होंगे खुद से अपनी मर्ज़ी से. अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया होगा, इंटेंशनली किया होगा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में पहुंचाने के लिए, तो वो उन सभी एक्ट्स के लिए क्या होगा? पर्सनली लायबल होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच.